इसके साथ ही हम लोग अब प्रश्न उत्तर कार्यक्रम के लिए सेशन को ओपन करते हैं। जिन प्रतिभागी को प्रश्न पूछना हो वो अपना हाथ ऊपर कर दे नीचे दिए गए सिंबल के माध्यम से, तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। और जिन विशेषज्ञों से प्रश्न पूछना हो अपना परिचय देते हुए प्रश्न पूछें। अब सभा ओपन है प्रश्न पूछने के लिए। हाँ हाँ, सुमित जी प्रश्न पूछना चाहते हैं। सुमित जी पूछिए। Thank you all for, I'm Sumit. Thank you all for sharing your thoughts, provoking ideas. I can, there's, you have unmuted everybody, so I can hear everybody. सुमित जी अपना परिचय दे दीजिए आप। Please unmute everybody else because there's a lot of voice coming. सुमित जी अपना परिचय दे दीजिए। काफी आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, so I cannot. Please unmute everybody else. Okay, I am muting. हाँ सुमित जी आप बोलिए। मेरा नाम सुमित है और मैं एक PhD स्टूडेंट हूँ। So मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है बोलचाल की भाषा है, लेकिन इतनी क्लिष्ट नहीं है, तो मैं इंग्लिश में भी बोलना चाहूँगा। So thank you all for sharing your thought-provoking ideas. However, I'm slightly confused after Dr. Nigam's speech. On the one hand, he suggested that we don't have nationalism, and he conceptualized nationalism in the form of nationhood, and suggested that its essence lies in inclusiveness. But then he discounted that there could be different identities and communities in India. So this emphasis on the homogeneity, is it not the same, the kind of nationalism that existed in Europe after the Treaty of Westphalia? Especially if you look at the scenario around exclusion of the others. For example, until the 1990s, Turks were guests in Germany and never granted citizenship in Germany. In the economic sphere, China continued to follow the same as elaborated by Professor Sharma. Are we following the same or different? Is it civic or ethnic nationalism? Especially when RSS chief recently equated nationalism with Nazism and exhorted to use nation and national, but not nationalism. So where do we exactly stand? So this is my question from to Professor Nigam. धन्यवाद सुमित। निगम सर। Well, as Mr. Sumit Jha himself acknowledged, that I categorically mentioned that Indians never believed in nationalism. We are using this word nationalism because it has been popularized and has been widely accepted globally. By nationalism, that is, when I am using the word nationalism, I also have clarified that I am meaning the old traditional philosophical concept of nationhood. This nationhood is self-evolved. Nationhood is widely accepted, hasn't been imposed, and this nationhood chiefly reflects the cultural identity. Ethnicity in itself is questionable, because the terms ethnicity, the terms race, the terms nationalism have been defined in particular with the particular set of values and have been defined very narrowly. Ethnicity, what should a common Indian understand by ethnicity? It's in itself a big question, because someone is born and brought up in Tamil Nadu
and other one is born and brought in Jaipur, Rajasthan. So they are belonging to the two different ethnicity. So are we strictly prohibiting the transfer of population from one place to another place? Whereas in India, there has been mobility among the population since times immemorial. So these Western terms, ethnicity, racism, and nationalism cannot be fitting the Indian concept. So if we have to understand the nationhood, the sense of national, the feel of national, we have to adopt Indian terminology. Thank you. धन्यवाद सर। ये रविशेखर जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। रविशेखर जी अपना प्रश्न पूछें परिचय देते हुए। हेलो, थैंक यू सर। मेरा नाम रविशेखर सिंह है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गाजीपुर में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरा प्रश्न है प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा सर। हेलो जी, सबसे पहले सर आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा रहा हम लोगों के लिए, स्पेशली हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं। हेलो, हाँ जी बताएं सर। जी सर, मैं सुन रहा हूँ सर। एक दो बातें हैं मेरे दिमाग में सर। पहली बात की जैसे आपने कहा कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात की सर आपने, तो आज के समय में एक बहुत ही जरूरी है, स्पेशली आज के समय में, क्योंकि जब सारी इंडस्ट्री पूरे हमारे देश में जो है इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है, तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां, स्पेशली चाइनीज कंपनियां आके हमारे देश की कंपनी को अधिग्रहण कर सकती हैं इस समय, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक स्लोडाउन चल सकता है। तो ऐसे में इकोनॉमिक स्लोडाउन की स्थिति में जो है नेशनलिज्म जो है इकोनॉमिक परिप्रेक्ष्य में होना बहुत जरूरी है। तो दो तीन बातें सर मैं इसमें कहना चाहूंगा। पहली बात की जैसे आपने कहा कि हम अपने देश के प्रोडक्ट्स को ही खरीदें, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा खरीदें, चाहे वो महंगा हो चाहे सस्ता हो, ये बहुत जरूरी है। और जैसा आपने जापान का एग्जांपल दिया, कोडक और फ्यूजी का एग्जांपल आपने दिया वहां पर, लेकिन हमारे देश में समस्या सर दो तीन बातें हैं। पहली बात कि हम छूट और सस्ते चीजों को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। जैसे अमेजॉन पे छूट आ जाए, हम इंतजार करते हैं, महीनों इंतजार करते हैं उस सेल के लिए, 50% डिस्काउंट होने वाला है। तो एक हमारी मेंटेलिटी जो शुरू से चलती आ रही है वो अचानक कैसे खत्म होगी। दूसरी बात की जो हम गरीब लोग हमारे देश में ज्यादा हैं, इलिटरेट हैं, और हम चीजों को अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सा चीज चाइनीज है, कौन सा अमेरिकन प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट इंडियन है। और आज भी हम बस जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म की जो बात हो रही है वो दीपावली में झालरों तक ही सीमित है। जब दीपावली आती है तो हम कहते हैं नहीं चाइनीज झालर नहीं खरीदेंगे, इंडियन झालर खरीदेंगे। उसके अलावा कौन सा प्रोडक्ट इंडियन है आजकल हम लोग जान नहीं पाते हैं। स्पेशली हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होने के नाते भी सब कुछ नहीं जान पाते हैं। तो सामान्य आदमी, जो आम आदमी है, उन चीजों को कैसे जान पाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट इंडियन है, उसको हम कैसे खरीदें? पहली बात सर। और दूसरी बात सर की जो इसमें WTO कितना हद तक बाधक होगा हमारे इकोनॉमिक नेशनलिज्म में, क्योंकि हम दूसरे देश के प्रोडक्ट्स को रोक नहीं सकते हैं अपने देश में उसको बेचने से, आने से और अधिग्रहण करने से। इन चीजों को तो हम रोक नहीं सकते क्योंकि हम WTO से बंधे हुए हैं। तो सर एक दो सर आवाज जा रही सर मेरी? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है सर। ये दो मेन प्रश्न है मेरा। और सर एक तीसरा प्रश्न भी छोटा सा है कि सर जो हम कह रहे हैं कि हमारे IT टेक्नीशियन बड़े मजबूत हैं, हम IT सेक्टर में बहुत आगे हैं, लेकिन आज भी हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एक चाइनीज जूम ऐप पे बात कर रहे हैं। इतने IT सेक्टर में मजबूत होने के बाद भी हम अपने लिए एक ऐसा कोई इंटरेक्टिव ऐप नहीं आज तक बना पाए हैं सर। तो ये कई समस्याएं हैं जो इस तरीके से इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन को और इकोनॉमिक नेशनलिज्म में बाधक है अभी हमारे देश में स्पेशली सर। तो कैसे इसको हम किस तरीके से इकोनॉमिक नेशनलिज्म को बढ़ावा दें सर, प्लीज सर? हाँ जी, सबसे पहला आपने चाइनीज टेक ओवर वाली बात कही, संभावना। तो अभी भारत सरकार ने अपना जो नीति घोषित की है उसमें ये भारत की जमीनी सीमाओं से लगने वाले देशों की कोई भी कंपनी
हमारे यहाँ FDI के माध्यम से एंटर करेगी या किसी कंपनी को अधिग्रहित करेगी, तो उसमें बिना केंद्र सरकार की अनुमति के ऐसा संभव नहीं है। तो बाकी तो ऑटोमेटिक अप्रूवल प्रोसेस में आता है FDI के प्रपोजल्स ज्यादातर सेक्टर्स में, लेकिन चूंकि चीन की जमीनी सीमाएं हमारे साथ लगती है, इसलिए चाइनीज टेकओवर्स के अगेंस्ट सरकार ने एक सही समय पे अभी पिछले सप्ताह में ही कदम उठा लिया है। तो काफी कुछ हम टेक ओवर को, उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट में हमें और भी FII इन्वेस्टमेंट की लिमिट को घटाना होगा, लेकिन अभी सरकार उसको घटाने की हिम्मत इसलिए नहीं कर सकेगी कि कहीं ना कहीं हमारा फॉरेन करंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को देखते हुए सीमा बढ़ाई भी है, वो एक अलग बात हो जाती है। दूसरी बात जहां तक चाइनीज कंपनियों की है, तो अगर हम 20-25 नाम ध्यान रख लें कि भाई ये हुवाई है या इस तरह से जो TCL है या तो कोई दिक्कत नहीं है, TSL है, तो अगर हम कुछ कंपनियों के, बहुत सीधी सी बात है कि आज की तारीख में ज्यादातर परचेजिंग पावर हमारी जो है वो एक अपर मिडिल क्लास के हाथ में है। बहुत सीधी सी, जैसे मैंने कहा कि भाई हम केवल 13% कारें भारत मेड बाई भारत बिकती है, बाकी सारी हम फॉरेन कार्स खरीदते हैं। जापान में 4% कारें केवल विदेशी बिकती हैं। जिनको सब तरह की कारें रखने का शौक है, केवल वही लोग खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको अगर देश को आगे बढ़ाना है, तो जो कम पढ़ा लिखा वर्ग है उसे भी ये जो हमें डोमेस्टिक ब्रांड्स की बात समझानी होगी और स्वदेशी का भाव सभी में जागृत करना होगा। अभी जो कोरोना के बाद लोगों में जिस तरह की आर्थिक राष्ट्रनिष्ठा देखने में आ रही है, इसका लाभ उठाते हुए अगर हम बिल्कुल गति से एक जन जागरण का अभियान अगर ले लेंगे, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि चाइनीज प्रोडक्ट को तो कोई भूल कर भी नहीं खरीदेगा, और इसलिए हमें यह करना ही होगा। और अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, मैं बहुत छोटा सा उदाहरण ऐसे स्पष्ट कर देता हूँ। मैं अगर यहाँ से पास में ग्रेटर नोएडा से बाहर निकला, कासना में गया और मेरा जूता टूट गया, मैंने अगर 200 रुपए का जूता किसी मोची से खरीदा जो जूता बनाता है, तो 200 रुपए उसके पास जाएंगे। अगर 1 घंटे बाद उसको लगा कि उसका जूता बनाने के लिए कोई औजार खरीदना है उसे, और पास के लोहार से उसने उसे खरीद लिया, वो 200 रुपया उसके पास चला जाएगा। उस औजार बेचने वाले ने अगर 15 मिनट बाद अपना कोई शर्ट खरीदना था और उसने पास के शर्ट वाले से शर्ट खरीद लिया, 200 रुपया उसके पास चला जाएगा। शर्ट वाले को मान लो अपने बच्चे के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदना था, ऐसे अगर मेरे दिए 200 रुपए अगर दोपहर 12 बजे तक 5 लोगों के बीच में घूमेंगे तो 1000 रुपए की वहां टर्नओवर जनरेट होगी, और अगर एक हफ्ते में 50 लोगों के बीच घूमेंगे तो 10,000 रुपए की इनकम जनरेट होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी। और अगर मैंने वो चाइना का जूता ऑनलाइन खरीद लिया तो 200 रुपया मल्टीप्लायर इम्पैक्ट से चाइना में 10,000 रुपए का टर्नओवर और प्रोडक्शन एनहांस करेगा। और अगर मैंने बाटा का खरीद लिया तो बाटा UK की कंपनी है, तो वो वहां जाके मल्टीप्लाई। तो ये हमको ही तय करना होगा कि हमें देश के लोगों को समृद्ध बनाना है या विदेशियों को समृद्ध बनाना है, ये हमको करना होगा। दूसरी बात, जहां तक WTO की है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का करीब 60 मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। उनके बावजूद भी यूरोप और अमेरिका ने पिछले दिनों डी ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से, जैसे जर्मनी से लेके यूरोप में और अमेरिका में, चाइना की कंपनियां क्या कर रही थी, जो वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत अच्छी एडवांस रिसर्चेस कर रही थी जो कंपनियां, उनको उन्होंने टेक ओवर करना शुरू किया। तो उन्होंने अपने कानून ऐसे बना दिया, उस टेक ओवर पे उन्होंने रोक लगा दी। जबकि WTO का जो एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है, उसके अनुसार भी ऐसा नहीं कर सकते। या उस समय फ्रांस के प्रधानमंत्री ने, मैंने वो जो डेनवन के टेक ओवर के ऊपर, ऐसे इन दिनों सभी देश अपने हित में काम कर रहे हैं। और अगर हमको WTO से बाहर आना पड़ जाए तब भी हमें सोचना चाहिए। और एक बात और कहूं कि हम इतनी ताकत रखते हैं, WTO के सारे मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को हम रिवाइज करवाने की ताकत रखते हैं। वहां 2/3 मेजोरिटी से कोई भी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को अमेंड करने के लिए 3/4 मेजोरिटी से कोई भी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। भारत की ताकत WTO में कितनी है, मुझे एक अच्छा उदाहरण सुन के सबको बहुत अच्छा लगेगा। चूंकि हम वर्ल्ड की फार्मेसी कहलाते हैं, और हमारे यहाँ चूंकि WTO के एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स के आधार पर हमने 2005 में अपना पेटेंट कानून बदला था। उसके पहले हमारे यहाँ प्रोसेस पेटेंट होने के कारण दवाइयाँ भारत में सबसे सस्ती है। हमारी तुलना में बाकी के सारे 200 देशों में दवाइयाँ 10 से लेकर 100 गुनी तक महंगी है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोसेस पेटेंट होने से
हमने अपने यहाँ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी कर रखी थी। तो जिस समय एड्स फैली हुई थी पूरी दुनिया में, उस समय भारत में एड्स की दवाइयाँ सस्ती उपलब्ध थी। अफ्रीका में एक पेशेंट की 1 साल की ट्रीटमेंट कॉस्ट $15,000 आती थी, $15,000, यानी 7.5 लाख उस समय की एक्सचेंज रेट पे। भारतीय कंपनियों ने कहा कि हम तो इसको $500 3% कॉस्ट में देने को तैयार हैं दवाइयाँ, सिप्ला वगैरह, हेट्रो, कई कंपनियों ने कहा। तो ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इन 2 देशों ने अपने यहाँ पहली बार दुनिया में कंपल्सरी लाइसेंस का प्रोविजन किया अपने कानून में, यदि एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स का डिसमेंटल करते हुए और हमें कोई दवाइयाँ एड्स की किसी दुनिया के किसी देश में सस्ती है तो हमारे को इनको इंपोर्ट करने का अधिकार होगा, ऐसा कंपल्सरी लाइसेंस का कानून बनाया। उसको ब्राजील के अगेंस्ट अमेरिका की सरकार ने WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में मुकदमा दर्ज कर दिया और साउथ अफ्रीका की सरकार के खिलाफ वहां की अमेरिकन कंपनियों के एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगा दिया। तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया वो कंपल्सरी लाइसेंस के कानून पे। तो वहां के लोगों ने बड़ा एक उग्र प्रदर्शन किया। केप टाउन जो साउथ अफ्रीका की राजधानी में, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर और अमेरिकन एम्बेसी तक, वो प्रदर्शन इतना उग्र था कि उन अमेरिकन कंपनियों को डर लगा और उन्होंने वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया और कीमतें 1/10 कर दी। इसी बीच में भारतीय कंपनियों ने अपना एक और किया कि हम तो $1 a डे में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो लगभग वो हो गया। इसी बीच में जब साउथ अफ्रीका में इतना बड़ा आंदोलन चला तो अमेरिका जैसे देश को डर लगा कि कहीं पूरे लैटिन अमेरिका में इसके खिलाफ आंदोलन चल गया तो क्या होगा, तो उन्होंने WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में जो मुकदमा दर्ज किया था उसको वापस ले लिया, चुपचाप के हमने सदाशयता दिखाते हुए उठा लिया। उसके बाद 2001 का दोहा का WTO का कॉन्फ्रेंस हुआ। हमारे यहाँ से मोरासोली मारन गए थे और पहले ही दिन जैसा इंडियन पार्लियामेंट में सीन होता है वैसा सारे डेवलपिंग कंट्रीज यूनाइट हो गए। उन्होंने कहा कि दवाओं के मामले में हम ये मोनोपोली नहीं चलने देंगे। तो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को लगा कि ये WTO तो डिसमेंटल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने तत्काल पहले दिन, ये 46 से गेट अस्तित्व में था, ये पहली बार हुआ उस समय 2001 में 50 साल में, कि उन्होंने एक सप्लीमेंट्री डिक्लेरेशन पहले ही दिन पास किया कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज में कोई महामारी या एपिडेमिक फैलेगी तो उनको कंपल्सरी लाइसेंस देने का अधिकार होगा। तो कहने का मतलब यह है। उसके बाद सिंगापुर मुद्दे आए। सिंगापुर मुद्दों में 4 मुद्दे थे, मैं उनकी अभी गहराई में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जब वो आए तो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज चाहते थे कि उनके ऊपर एक्शन प्रोग्राम दोहा डिक्लेरेशन में आ जाए। मुरासोली मारन अड़ गए कि अगर आप सिंगापुर इश्यूज का एक्शन प्रोग्राम इंक्लूड करेंगे तो इंडिया शैल स्टैंड आउट ऑफ दोहा डिक्लेरेशन। दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज और सिंगापुर इशू के नुकसान समझ में नहीं आ रहे थे। यूरोप और अमेरिका के सारे देश बेंट अपॉन थे कि ये पास हो। एक प्रकार से 144 देश उस समय मेंबर थे, भारत अकेला अलग एक तरफ, बाकी के 143 देश उसको पारित करने को तैयार। हमारे यहाँ रविशंकर अय्यर, मणिशंकर अय्यर और कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुरासोली मारन सुसाइड कर रहे हैं, हमारा उस समय 0.5% हिस्सा ही था, हमारा वर्ल्ड ट्रेड में 0.5% शेयर है, अगर हम इस तरह से अड़े रहेंगे तो बाकी के देश हमको अलग थलग करके और वो मेजोरिटी से प्रस्ताव पास कर लेंगे। लेकिन किसी की हिम्मत में भी वो सम्मेलन 18 घंटे लेट तक चला, 4 दिन के बजाय 5 दिन चला, केवल भारत के ना कह देने से। और अंत में यूरोप और अमेरिका झुके और दोहा डिक्लेरेशन में एक वाक्य जोड़ा, नो नेगोशिएशंस shall commence upon 4 these Singapore issues unless an explicit consensus is arrived in the next biannual conference। और उसके बाद 2003 के कॉन्फ्रेंस में 69 कंट्रीज ने लिख के दे दिया WTO के डायरेक्टर जनरल सुपाचाई को, my country does not want to have negotiations upon Singapore issues, hence there is no explicit consensus and the negotiation should not commence। सिंगापुर मुद्दे अपनी मौत मर गए। इसी बीच जो हुआ यह था कि 2001 में जैसे ही हम वहां से आए और हमने एक G16 बना लिया था, मलेशिया की कॉमर्स मिनिस्टर अजीज उसकी चेयरपर्सन बन गई और इन G16 ने पूरी दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज को समझाया, उसकी बदौलत 69 कंट्रीज हमारे साथ हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि WTO में हम चाहें जैसा परिवर्तन कर सकते हैं, WTO से हम बाहर आ जाएं तो कुछ नहीं होने वाला है। और WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में कोई मुकदमा जाएगा तो आज WTO के उनका इतना वायोलेशन हो रहा है। और चाइना एक नॉन मार्केट इकोनॉमी है, चाइना के संदर्भ में हमको WTO के किसी एग्रीमेंट से डरने की भी आवश्यकता नहीं। और IT सेक्टर की जो आपने बात कही, मुझे IT सेक्टर में हम क्या है केवल बॉडी शॉपिंग कर रहे हैं।
हम अपना प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि वही ओरेकल, SAP AG, सन माइक्रो सिस्टम, एप्पल, उनके लिए काम कर रहे हैं। जब तक हम अपने लिए काम नहीं करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे, और हम अपने, आज हम बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं। आज जूम क्यों, सब मेरे ख्याल में एकेडमिक्स से जुड़े हुए लोग हैं। हम SPSS और सिस्टेट पे ही क्यों काम करते हैं? हम अपना कोई डेटा एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बना सकते? हिंदुस्तान की 4 यूनिवर्सिटीज मिलकर चाहें तो SPSS जैसा डेटा एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर बना सकती है। एक यूनिवर्सिटी कहेगी टाइम सीरीज और रिग्रेशन का मैं बनाऊंगा, कोई यूनिवर्सिटी कहेगी क्रोटोसिस का मैं बनाऊंगा। हम सोचते हैं, हमें सोचना होगा कि प्रोडक्ट हम बनाएं, और अदरवाइज हम अगर जो है मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया में 700 एंटिटीज बहुत एडवांस काम कर रहे हैं। उनमें कुछ कंपनियां हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उन 700 एंटिटीज में एक भी इंडियन एंटिटी नहीं है, लेकिन उसमें काम करने वाले 40% लोग इंडियंस हैं। इसलिए मुझे ये सबसे निवेदन यही करना है कि हमें कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स सॉफ्टवेयर के फील्ड में भी लॉन्च करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न, नाम नहीं है लेकिन Oppo A71 अपीयर हो रहा है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना परिचय देते हुए प्रश्न पूछें। मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं। जी, मेरा नाम वरुण तिवारी है और मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं सर। सर मेरा सवाल निगम सर से है। और आपको मेरी आवाज आ रही है सर, आप लोगों को? हाँ हाँ, आ रही है सर। आपने 2 बातें बताई, एक राष्ट्रवाद सर और दूसरा राष्ट्र तत्व। सर राष्ट्रवाद में ये बताया गया कि सर ये थोड़ा सा ये विचारधारा ऑफेंसिव है, जिसमें ये कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, समस्या है कि ये राष्ट्रवाद हमारे कुछ विशेष समुदाय के लोगों को दिक्कत कर रहा है, समस्या कर रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर इसको थोपा जा रहा है, इसलिए इसको थोड़ा हमने नॉर्मल करने के लिए राष्ट्र तत्व नाम का एक आपने भी एक कंसेप्ट दिया है, राष्ट्र तत्व। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मेरी सवाल भी है और सर मैं कहना भी ये चाहता हूँ कि सर एक विशेष वर्ग में या मान लीजिए विशेष कम्युनिटी में जो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी की भांति है, यदि उसमें राष्ट्र तत्व भी नहीं है और उसकी निष्ठा किसी और देश के प्रति है, तो आप कैसे आप उसको उसके अंदर एक राष्ट्रवाद या राष्ट्र तत्व या राष्ट्र प्रेम की भावना लेके आएंगे? आप इसको कितना सरलीकृत करेंगे और उसको कितनी छूट देंगे जिससे वो कह सके कि हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं? उसको हर एक वाद से, हर एक तत्व से समस्या है, तो आप कैसा तत्व उसके अंदर रखना चाहते हैं कि उसे लगे कि हाँ ये देश हमारा है? सर मेरा सवाल अगर आप समझ गए हो सर, तो मेरा सवाल यही है निगम सर से। यह जो प्रश्न आपने किया वास्तव में मेरे कथन को ठीक से समझ नहीं पाए या किसी कारण कोई संभ्रम उत्पन्न हुआ। मेरे कहने का आशय कतई नहीं था इससे किसी वर्ग को आपत्ति है। वास्तविकता यह है कि कोई भी वाद, राष्ट्रवाद ही नहीं तो कोई भी वाद, वो आर्थिक संदर्भ में हो, राजनीतिक संदर्भ में हो, वाद में एक प्रकार की जड़ता होती है, एक प्रकार की घेरेबंदी होती है और वाद प्रतिवाद को जन्म देता है। भारत में इसी कारण से जितने भी चिंतन हो उनमें से किसी भी को वाद के रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया। वाद का अर्थ ही होता है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। ये अलग बात है कि भारत के चिंतन को पश्चिमी शैली में पढ़े लोगों ने, क्योंकि मैं उल्लेख करूं कि दर्शन शास्त्र में अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद इस प्रकार के शब्द प्रयोग करने लगे, लेकिन जो इनके प्रतिपादक थे उन्होंने कभी इसको वाद के रूप में प्रस्तुत ही नहीं किया। इसलिए यह विषय नहीं है कि किसी को आपत्ति है इसलिए राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। राष्ट्र भाव, राष्ट्र तत्व, राष्ट्रीयता, यह हमारी संकल्पना के अंग रहे और इस किसी एक भू क्षेत्र में जिनके की जहाँ के रहने वालों की एक लंबी परंपरा है, हजारों वर्ष का अपना इतिहास है,
वहां पर स्वाभाविक रूप से जो मान्यताएं, जो जीवन मूल्य, जो जीवन शैली, जो सामाजिक संबंधों के संदर्भ में भाव आदि, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, इनका जो विकास हुआ है, उसी भू क्षेत्र में उसी परंपरा के वाहक और किसी कारण से उनकी पूजा पद्धति अलग हो या किन्हीं बिंदुओं पर उनका प्रगटीकरण भिन्न हो, और इस नाते से एक अलग संवर्ग के रूप में अपनी को चिन्हित करने का प्रयास करे, तो वह प्रयास गलत है। किसी भी क्षेत्र के निवासी को वहां की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और उसका सम्मान करते हुए अपने ढंग से जीने का अधिकार है। लेकिन हम जैसे जीते हैं उसके लिए आपकी संस्कृति, ये मैं और आप, यह भाव ही विभाजन पैदा करता है। और इसलिए जो यहाँ की संस्कृति है, इसको बंद करो। आपने तो प्रश्न थोड़ा लपेट कर पूछा, लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ के आदिकाल से इस जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो भूमि है, उसके प्रति माता का भाव रहा है। वाल्मीकि ने लिखा राम का भाव, अभी आजकल रामायण आ रही थी तो लोगों को रिफ्रेश भी हुआ होगा कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। फिर उसी वंश परंपरा के लोग उसी धरती पर भारत माता की जय कहने का विरोध क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, या फिर वो कहीं अन्यत्र से गाइडेड है? कोई अन्यत्र से, देश के बाहर की शक्तियों से प्रभावित होकर देश में किसी प्रकार की एक पहचान बनाना चाहता है, बाहर की शक्तियों के प्रभाव में इस देश के अपनी पहचान को नष्ट करना चाहता है, उसको धूमिल करना चाहता है, तो यह समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। और आपके प्रश्न से मिलता जुलता चैट में मनीष कुमार जी ने एक विषय डाला है, और चैट में आप देख लीजिएगा। लेकिन मनीष कुमार जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली या मेरठ की एक घटना थी कि एक ड्रग एडिक्ट बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या इसलिए कर दी कि उसका पिता उसको ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे नहीं दे रहा था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। अंत तक वह ड्रग एडिक्ट नौजवान यही कहता रहा कि उसके पिता की हत्या का जिम्मेदार उसके पिता स्वयं है, क्योंकि उन्होंने नशे करने के लिए उसको दवा के पैसे क्यों नहीं दिए। तो इस प्रकार यदि कोई किसी पर आरोप लगाता है, आक्षेप लगाता है, तो उस आरोप आक्षेप का कोई समाधान नहीं है। यह सबको देखना पड़ेगा कि उनके जो विचार हैं वो कितने न्यायोचित हैं, कितने उस देश के भूमि से, उस वहां के राष्ट्र भाव से, वहां के राष्ट्र जनों से कितना जुड़े हुए हैं, कितना एकात्मता और अखंडता को पोषित करने वाले हैं। और यदि नहीं, तो अपने अपने ढंग से रहने का सबको अधिकार है, परंतु सामूहिकता के अवसरों पर अपनी अलग धारा बहाने का अधिकार कोई समाज कभी भी किसी को न देता है, न भारत में दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न मनीष जी पूछेंगे। मनीष कुमार सिंह जी, मनीष जी अपना परिचय देते हुए प्रश्न पूछिए। जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीएमपी डिग्री कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरा प्रश्न डॉक्टर विवेक निगम सर से था। अभी इस प्रश्न को मैंने उनको पर्सनल चैट भी कर दिया था, तो उसका भी समाधान सर ने अभी दिया। मेरा प्रश्न CAA का मुद्दा हो या कोरोना की महामारी हो, इस सब में बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम समाज में अविश्वास बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देश में एक अराजक स्थिति उत्पन्न हो रही है।
समाज का एक तबका इसका जिम्मेदार सरकार को मान रहा है? यही सवाल था मेरा निगम सर से। धन्यवाद सर। हेलो। हेलो। पता है किसी पूछा है? ऑन करो। अच्छा, मेरा नाम। हेलो, ये प्रश्न क्या मनीष ने मुझसे किया है? जी सर, आपने समाधान कर दिया ना हाँ, पहले अनुराग, ही। वैसे तो इस जी प्रश्न के संकेत में उत्तर मैंने दे दिया था। जी सर, जी सर। मैं उसको स्पष्ट कर देता हूं कि CAA या कोरोना को लेकर मुस्लिम समाज में जो अविश्वास है, यह स्वाभाविक नहीं है। इस अविश्वास को उनके बीच पैदा किया जा रहा है। यह अविश्वास पैदा करने के लिए अरुंधति रॉय जैसी प्रख्यात विदुषी, द वायर जैसे हाईली बायस्ड इंटरनेट जर्नल का सहारा लेती है। इस प्रकार के संभ्रम को पैदा करने के लिए 30-40 मौलाना जगह जगह पर जहरीले व्याख्यान देते आए हैं। इंडिया टीवी ने जिनको एक्सपोज किया एक लंबी सीरीज चलाकर। और इसकी क्रोनोलॉजी में जाएं तो वास्तव में भारत में जो वामपंथी शक्तियां हैं और कई ऐसी शक्तियां हैं जो विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में NGOs या किन्हीं किन्हीं संस्थाओं के नाम पर बड़ी राशि प्राप्त करती रही हैं, और जाने या अनजाने कह नहीं सकता, लेकिन भारत विरोधी एजेंडा चलाती रही हैं। ऐसी सारी शक्तियां एक साथ हुई। यह देखा गया कि कई समाज के विकास के लिए किए गए सरकार के कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला हो, जनधन हो, और जिसका सभी गरीब कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचा, जिसके कारण सामान्य गरीब गांव गिराव का जो एक मुसलमान था, जो शायद इस प्रकार के दुष्प्रचार प्रोपेगेंडा की चपेट में नहीं आया होता है, उसकी धारणा कुछ अलग प्रकार की प्रकट होने लगी। ट्रिपल तलाक के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनें आगे आईं और उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया। इस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज में जो भारतीय राष्ट्रीय तत्व को लेकर इस देश को राष्ट्रीयता के आधार पर सभी मतावलंबियों को एक साथ लाकर एक राष्ट्र शक्ति खड़ा करने के प्रयास में लगे लोग हैं, उनके प्रति उनका बढ़ता झुकाव देखकर एक सुनियोजित कार्यक्रम के तौर पर CAA के विरोध में एक प्रयोग के रूप में शाहीन बाग में किया गया, और उसमें जानबूझकर मुस्लिम महिला बहनों को आगे किया गया, ताकि वे जब इस भय से कि NRC के कारण उनको यहाँ से, इस देश से बेदखल कर दिया जाएगा, आक्रामक होंगी, तो मुस्लिम बहनों का जो स्वाभाविक यहाँ के पूरे समाज में घुल मिलकर एक साथ चलने का जो क्रम शुरू हुआ है वह टूटेगा। वह प्रयोग शुरू हुआ, और उसी क्रम में कोरोना के काल में भी इस बात का प्रचार किया गया कि कोरोना के बहाने से मुस्लिम सॉलिडारिटी को खत्म किया जा रहा है, एकजुटता को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। और ये केवल यही नहीं हुआ, पाकिस्तान में अलगाववाद जो आतंकवादी शक्तियां हैं, उन्होंने भी वहां इस प्रकार के प्रचार किए। तो यह जो बीमारी
उसे एक समाज के अंदर से पैदा हो रही है, या फिर इस बीमारी के कीटाणु जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील बुद्धिजीवी इस देश के फैला रहे हैं, इसका समाधान उसी समाज के बीच से निकल कर आना है। इस कोरोना के मसले पर वे मुस्लिम बुद्धिजीवी कहाँ छुपे हुए हैं जो सीएए के नाम पर सड़कों पर उतरे थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे? कहाँ है वजाहत हबीबुल्ला? कहाँ है पूर्व चुनाव आयुक्त? कहाँ है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी? कहाँ है राशिद किदवई? कहाँ है शाहिद अहमद? कहाँ है हमारे इस प्रकार के जो बुद्धिजीवी हैं? आज कोरोना के मामले पर वह सामने आकर क्यों नहीं बयान दे रहे? तो यदि अल्पसंख्यकों को एक टकराव वाली शक्ति के रूप में प्रकट करके उन्हीं के समाज का एक वर्ग मलाई काटने के फिराक में है और उसी पर रास्ते पर चल रहा है, तो अल्पसंख्यकों का के दुनिया में हो रही बदनामी और उनकी अल्पसंख्यकों के प्रति जो दुर्भावना पैदा हो रही है, उसको ठीक करने का, उसको सुधारने का जिम्मेदारी दूसरे समाज के लोगों के ऊपर नहीं डाली जा सकती है। इसका समाधान उन्हें स्वयं ढूंढना होगा और उन्हीं में से ऐसी शक्तियों को उभर कर आना होगा जो अपने अंदर पिछड़ेपन को परपिचुएट करने वाली, अपने अंदर जड़ता को बढ़ाने वाली, अपने अंदर अंधविश्वासों, अशिक्षा और अराष्ट्रीयता को बढ़ाने वाली, देश के प्रति घृणा पैदा करने वाली शक्तियां हैं, उन्हें चिन्हित करें और उन्हें अपने समाज में मार्जिनलाइज करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न, नाम तो नहीं दिख रहा, 2993। तो निवेदन है कि अपना परिचय देते हुए प्रश्न पूछें। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम पीयूष है। मैं उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारी हूं और मेरा जो प्रश्न है वो प्रोफेसर शर्मा जी से है कि उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें अपनी चीजों को खरीदना चाहिए, अपने यहाँ जो बने हुए उत्पादन हैं उन्हें खरीदना चाहिए, बजाय कि विदेशी से जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदें। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए जिससे सक्सेसफुल मॉडल बताया कि कैसे सक्सेसफुल मॉडल्स हुए हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हिंदुस्तान सरकार कई बार बहुत से प्रोजेक्ट लेके आई, जैसे मेक इन इंडिया या कई सारे प्रोजेक्ट लेके आई। इसमें ये कहा गया कि हम अपनी चीजों का निर्माण करेंगे और हम खुद बेचेंगे और अपने आप पूर्ति करेंगे। क्या कारण थे कि किस वजह से ये सारी योजनाएं भारत में फेल हुई और हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए? कोई एक दो मुख्य कारण जरूर होते हैं हर योजना को फेल होने में, कृपया करके उस पर प्रकाश डालने का कृपा करें। ऐसा है कि मेक इन इंडिया में तो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ आकर अपनी असेंबली लाइंस चला के, जैसे उदाहरण के लिए चीन की जियोमी कंपनी अपना 4% वैल्यू एडिशन मोबाइल को असेंबल करने का यहाँ करती है और उस पर मेड इन इंडिया लिख देती है और एक वह भ्रांति होती है। इसलिए मैं शब्द प्रयोग करता हूँ मेड बाय इंडिया या मेड बाय भारत। तो जो प्रोडक्ट्स हमने, मतलब आज एबीएस वोल्वो अपनी ट्रक या बस यहाँ असेंबल करती है स्वीडिश कंपनी, तो वो मेक इन इंडिया तो होगा, लेकिन मेड बाय इंडिया टाटा, महिंद्रा या अशोक लीलैंड ये ही होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें यह भेद तो करना होगा। जैसा आज दुनिया के अधिकांश देश जो उन्नत हैं वे सभी अपने यहाँ पर करते हैं, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, चाहे वो अमेरिका हो, ताइवान हो, कोरिया हो, ये सभी देश करते हैं। तो हमें इसको करना। और दूसरा, चूंकि पहले 1991 4 जुलाई के पहले अपने देश में किसी भी कंपनी में 40% से ज्यादा फॉरेन शेयर होल्डिंग के ऊपर रोक थी। यह जब हमको वर्ल्ड में IMF से कोई $7.2 बिलियन का ऋण लेना था और उस समय हमने ये FDI की लिमिट 100% और ऑटोमेटिक अप्रूवल और ग्रेजुअली धीरे धीरे करते गए। तो उसके कारण ये हुआ कि देश में जो सुस्थापित कंपनियां थी एक एक करके टेक ओवर, और यह दुनिया में एक बड़ा व्यापार युद्ध चल रहा है और इस व्यापार युद्ध
शब्दों को समझने के लिए, मैं समझाने के लिए एक बहुत अच्छा सा उदाहरण ले लेता हूँ। उदाहरण के लिए 100% सीमेंट हम भारतीय लोग बनाते थे और 1980s में ये सीमेंट में ट्रेड वार शुरू हुआ। यूरोप की 6 कंपनियों ने, जब अमेरिका और कनाडा में सीमेंट सनराइज सेक्टर था और बड़े वहाँ सीमेंट कंक्रीट रोड, एलिवेटेड रोड, इस सब के कारण सीमेंट की जबरदस्त डिमांड, तो हेडलबर्ग, इटाली सीमेंटी, लाफार्ज, होलसिम आदि कंपनियों ने नॉर्थ अमेरिका में सस्ती सीमेंट की डंपिंग शुरू की, जिससे वहां के मैन्युफैक्चरर्स ने हाथ खड़े किए और उन्होंने अपनी कंपनियां बेची और यूरोप की 6 मेजर सीमेंट मेजर्स ने उनको खरीद लिया। उसके बाद 90s में ईस्टर्न यूरोप में उन्होंने ऐसे ही टेक ओवर किया। उसके बाद 95 ऑनवर्ड्स लेटिन अमेरिका में किया। उसके बाद में 97 ऑनवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया के 10 ही देशों में ये 6 सीमेंट मेजर्स ने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग को टेक ओवर किया ग्रेजुअली। और फिर वहां से उन्होंने बहुत ग्रेजुअली हमारे देश में कोरिया के रास्ते, मतलब कोरिया में जब उन्होंने टेक ओवर कर लिया तो हम उस समय कहते थे कि कोरिया की सीमेंट सस्ती आ रही है 97, 98, 99, 2000 के आसपास, और उन्होंने कोरिया के रास्ते उन 6 यूरोपियन कंपनियों ने यहाँ सस्ती सीमेंट बेचनी शुरू की। सबसे पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने हाथ खड़े किए, उन्होंने अपने सीमेंट के कारखाने बेचे, तो उनको लाफार्ज फ्रेंच कंपनी ने खरीद लिया। उसके बाद टाटा ग्रुप में ही दूसरी एसीसी थी, जिसके पास इंडिया की 20% सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी जगह सीमेंट प्लांट्स थे। उन्होंने एसीसी को बेचा तो उसको स्विस कंपनी होलसिम ने खरीद लिया। स्विट्जरलैंड कितना बड़ा देश है, 41,000 स्क्वायर किलोमीटर का। हमारा सही चीन जो चीन के कब्जे में, वही 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का। इतने छोटे से कंट्री की होलसिम नाम की कंपनी ने 20% सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उस समय देश की एसीसी के पास थी, उसको टेक ओवर किया। फिर गुजरात अंबुजा को भी उन्होंने खरीद लिया। ऐसे करके धीरे धीरे देश की मोर देन 50% सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 6 यूरोपियन कंपनियों के हाथ में चली गई। कोई मुश्किल से 13,000 करोड़ रुपए का एफडीआई इस देश में आया और 1.5 लाख करोड़ के सीमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग देश में होती है, बिकती है, उतना बड़ा सेक्टर फॉरेन हैंड्स में 50% उसका चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया में ट्रेड वॉर में हमको भी मतलब जो है ये ध्यान रखना है, हम कैसे अपने इंडस्ट्री ओनरशिप्स को प्रोटेक्ट करें और हम किस तरह से अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटीज को सपोर्ट देके कई तरह से हमको सपोर्ट भी देना होगा और ये करना होगा। जैसे मैंने उदाहरण बीच में दिया भी था, सोलर पैनल में जापान ने और अमेरिका ने 100% एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइनीज पैनल्स में लगा दी। तो हमें भी विदेशों से जो चीप डंपिंग होती है उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी होगी। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कोई आ रहा है तो ठीक है, लेकिन ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं चलती हुई कंपनी को टेक ओवर करते हैं, तो उस ब्राउनफील्ड टेक ओवर्स के ऊपर भी हमको कानून बना के उस पर रोकना होगा। धन्यवाद सर। जी सर, अगला प्रश्न कृष्णा पांडे जी, मैं उनको म्यूट कर रहा हूँ। कृष्णा पांडे जी, सर अपना प्रश्न। हाँ सर, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार पांडे हूँ, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, BHU। सर मेरा सवाल है कि शर्मा सर से मेरा सवाल है कि शर्मा सर, जैसे है कि आपके इकोनॉमिक नेशनलिज्म या टेक्नोलॉजिकल नेशनलिज्म के लिए ये रिक्वायर्ड है कि एक सोशियो इकोनॉमिक बेसिक, एक सोशियो इकोनॉमिक लेवल का रिक्वायर्ड है सर। और भारत जैसे जहाँ की वर्तमान समय में सर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कैपिटल फॉर्मेशन हो या सेविंग हो या इन्वेस्टमेंट हो या सर पावर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन जो भी है काफी लो है इस समय सर। तो सर इसमें कहाँ तक ये मतलब आपका थॉट वाइबल है? दूसरा सर सवाल मेरा है, जो आप कह रहे थे कि हम लोग दूसरे कंपनियों के लिए काम करते हैं, लेकिन हमको अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, अपनी कंपनी को प्रमोट करना चाहिए। तो सर मेरा सवाल ये है कि हमारे पास स्किल तो है, लेकिन सर सिलिकॉन, लेकिन ये भी सच्चाई है कि सर कि इस कंपनी इसको प्रमोट करने के लिए एक इकोसिस्टम होना चाहिए। जैसे सिलिकॉन वैली की तरह अगर इकोसिस्टम चाहिए सर, तो हमको हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और जो कि ये इन्वेस्टमेंट इन विदेशी कंपनियों FDI के माध्यम से आता है सर। तो सर मेरा यही सवाल है
कि आपका ये सर जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, टेक्नोलॉजिकल नेशनलिज्म है, ये कितना वाइबल है? क्योंकि सर कहा जाता है कि जब भी नैतिकता और अर्थशास्त्र में द्वंद्व होता है तो अधिकतर अर्थशास्त्र की जीत होती है सर। धन्यवाद सर। देखिए, एक तो मैंने जैसा शुरुआत में कही थी कि चाइना की पर कैपिटा इनकम हमसे 15-20% कम थी, तो उन्होंने भी इसी सारे रास्ते को अपनाया है कि अपना राष्ट्रीयत्व या राष्ट्र इकोनॉमिक नेशनलिज्म या टेक्नो नेशनलिज्म का सहारा लेकर वो लोग आगे बढ़े हैं। अच्छा, हमेशा कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कैपिटल इंटेंसिव हो ये जरूरी नहीं है। एक बहुत पुराना उदाहरण है लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है। जब हम 32 करोड़ रुपए 32 करोड़ ऑफ रुपीस देने को तैयार थे एक क्रेज सुपर कंप्यूटर के लिए, लेकिन अमेरिका के वीटो कर देने से उसे हम नहीं खरीद पाए, तो हमने अपने यहाँ CDEC, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की स्थापना की। और CDEC में विजय भाटकर जी ने सोचा कि भाई दुनिया में किसी ने अभी तक पैरेलल प्रोसेसिंग की बात नहीं सुनी है, क्या हम पैरेलल प्रोसेसिंग करके और सुपर कंप्यूटिंग की स्पीड से प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हैं क्या डेटा? तो उन्होंने उस पर काम किया और हमने दुनिया का सबसे पहली बार ही हमारी कल्पना थी कि हमने पैरेलल प्रोसेसर बनाया। और उस समय के क्रेज से मतलब फास्टर प्रोसेसिंग थी उसकी, कुछ दूसरे मायनों में सुपर कंप्यूटर से उसमें कुछ इन्फीरियरिटीज थी लेकिन प्रोसेसिंग अच्छी हो गई। आज हम 537 टेराफ्लॉप प्रोसेसिंग स्पीड के पैरेलल प्रोसेसर बना रहे हैं जो दुनिया के सबसे एनर्जी एफिशिएंट है, और वो हमने 1 करोड़ से कम लागत में बना लिया। मतलब 32 करोड़ हम उसके देने को तैयार थे क्रेज सुपर कंप्यूटर के। भारत सरकार ने केवल 30 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से CDEC स्थापित किया और उसमें हमने 1 करोड़ से कम लागत में पैरेलल प्रोसेसर बना लिया। तो कहने का मतलब है कि कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है हमें, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर प्रयास करेंगे तो मैं बल्कि एक थोड़ा सा बहुत पुराना उदाहरण ले लेता हूँ। 1945 में अंग्रेजों ने बॉम्बे मिल्क स्कीम बनाई बम्बई में, और पोल्सन लिमिटेड नाम की कंपनी को काम दिया कि आप पूरे गुजरात महाराष्ट्र से दूध इकट्ठा करके लाओ। उस समय खेड़ा छोटा कस्बा था और वहां के 126 फार्मर्स, जिनका कुल मिलाकर 247 लीटर दूध होता था, पर फार्मर 2 लीटर दूध होने के लिए भी 252 लीटर दूध चाहिए। और उन्होंने अपनी एक कोऑपरेटिव बना के और बॉम्बे मिल्क स्कीम को कहा कि आप हमारा दूध हमारी कोऑपरेटिव से लीजिए, हम पोल्सन लिमिटेड को नहीं बेचेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं बेचोगे तो आप चले जाओ यहाँ से। उन्होंने हड़ताल कर दी। तो बाद में बॉम्बे मिल्क स्कीम झुकी और कहा कि अच्छा भाई ठीक है, पूरे गुजरात महाराष्ट्र से तो दूध इकट्ठा करने का काम पोल्सन को करने दो, लेकिन ये जो है खेड़ा वालों का उनकी कोऑपरेटिव से ले लो। तो खेड़ा से मुंबई तक 425 किलोमीटर दूर 247 लीटर दूध की डेली डिलीवरी के लिए वो छोटा सा कोऑपरेटिव धीरे धीरे उसमें संख्या बढ़ने लगी। 5000 मेंबर हो गए, दूध बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने एक चिलिंग प्लांट लगा दिया, पाउडर का प्लांट लगा दिया, उसके बाद उन्होंने बटर प्लांट लगा दिया। आज वो अमूल 40,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर के साथ चॉकलेट आइसक्रीम में मल्टीनेशनल कंपनियों को भी टक्कर दे रहा है। और उसकी नकल करके 22 स्टेट्स ने भी वैसी 3 टियर कोऑपरेटिव फेडरेशंस बनाई। आज 1 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स उसमें लगे हुए हैं और उसकी बदौलत भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया। और आज वर्ल्ड में पर कैपिटा एवरेज मिल्क अवेलेबिलिटी पर डे 250-70 ml है और हमारे यहाँ ये 345 ml पर कैपिटा पर डे अवेलेबिलिटी आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि हमको इनिशिएटिव्स तो लेने होंगे और उन इनिशिएटिव्स के माध्यम से ही, और इसके लिए हमें अपने लोगों में उद्यमिता जागृत करनी होगी, चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हों। ये बात अवश्य है कि सरकार को उसके लिए इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। वहां पर चाहे हमको सब तरह की सुविधाएं देनी होगी, तो उसके लिए इकोसिस्टम डेवलप करके और हम बड़े आराम से, चाहे कंसोर्शियम अप्रोच हो चाहे कोऑपरेटिव अप्रोच हो, हम उसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो आपको कहूँ छोटा सा शुरुआत, किरण मजूमदार शाह जी आज हिंदुस्तान की सबसे अमीर महिला है। जिस समय उन्होंने अपना बायोकॉन की स्थापना की थी तो 10,000 रुपए उनके पास थे और एक किराए का गैराज था। बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, भाई आपके पास केवल 10,000 रुपए हैं और गैराज भी किराए का है। फिर भी उन्होंने बायो फार्मास्यूटिकल्स में रिसर्च जारी रखी। तो आज की तारीख में उनकी बायोकॉन इंडिया की लार्जेस्ट बायो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी बायो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। 109 देशों में डायबिटीज से लेके कैंसर से लेके कई तरह के जीवन रक्षक टीके वो एक्सपोर्ट करती हैं। और जब वो पब्लिक इशू लाई थी तो उनका इशू 30 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था।
और मैं खास बात किरण जी का उदाहरण केवल इसलिए देता हूँ कि उनके पिताजी का देहावसान हुआ जब उनकी मदर की एज थी 64 ईयर्स। तो उन्होंने, अब हिंदुस्तान की सबसे अमीर महिला अपनी माताजी को रख सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी माताजी को प्रेरित किया कि माँ तुम अपना खुद का कोई काम शुरू क्यों नहीं करती हो। उनकी माताजी यामिनी मजूमदार ने 64 ईयर्स की एज में, जब हमारे यहाँ 60 साल में आदमी रिटायर हो जाता है, अपना लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू किया। आज उसमें 85 एग्जीक्यूटिव्स और एम्प्लॉइज हैं और वो 86 ईयर्स की एज में उसको बहुत एफिशिएंटली रन कर रही है। हमें कहीं ना कहीं अपने देश के समाज में जो एक नौकरी करने की जो वृत्ति है उसको उससे बाहर निकाल के हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को और सबको मतलब अपने खुद के वेंचर्स एस्टेब्लिश करने के लिए आगे आना पड़ेगा और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ कुछ सर ये कह रहे थे कि सर जो टेक्नोलॉजिकल नेशनलिज्म है सर, ये बहुत वाइबल टू चेंज है सर, तो इसके लिए रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो कैपिटल जो सर कह रहे हैं कि अब रिक्वायर्ड नहीं है, हम इस बात से सहमत नहीं है कि सर कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है सर, और यही कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से इतनी योजनाएं आई और वो असफल हो गई सर। नहीं, देखिए हमने योजनाएं अब तक क्या हुआ है कि ज्यादातर एफडीआई बेस्ड रखी हैं। हमको अपना स्वतंत्र रूप से अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा और शुरुआत हमको बहुत छोटे लेवल पे करनी ही होगी। उससे मैं आपको 2 उदाहरण यहाँ और रख देना चाहता हूँ। एक उदाहरण तो मैं आपको अपना इसका देना चाहता हूँ। अभी हाल ही में एक सोलर में एक युवक आए, राहुल गुप्ता, अपने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे। कुछ पेपर्स में बैक होने से वो अपना एलिजिबल नहीं थे कैंपस प्लेसमेंट के लिए। उन्होंने अपना सोलर का काम शुरू किया 2012 में और आज वो 700 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी है। तो कहीं ना कहीं यूथ अगर आगे आएगा, और उनकी स्थिति ये थी 2011 में जब उन्होंने काम शुरू किया तो उन्होंने एक टेंडर भरना था 1,34,000 रुपए, 1,34,000 रुपीज अर्नेस्ट मनी के उनके पास नहीं थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कहा कि हम दूसरी कंपनियों के लिए जॉब वर्क करेंगे और धीरे धीरे उन्होंने खुद के अपने टेंडर लेने शुरू किए और काम शुरू किया। तो जिस व्यक्ति के पास 2011 में 1,33,000 रुपए अर्नेस्ट मनी के नहीं थे और वो आज अगर 700 करोड़ की कंपनी सोलर के फील्ड में लेकर अगर चल सकता है, तो कहीं ना कहीं हमको इस प्रकार का इनिशिएटिव तो लेना होगा कि हम उस फील्ड में आगे बढ़ें। आप अगर देखें महिंद्रा का उदाहरण, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो ऑनर्स थे उनके साथ एक मुस्लिम पार्टनर था और वो स्क्रैप का बिजनेस करते थे और वो पाकिस्तान चला गया तो उनका वो बिजनेस भी अफेक्ट हुआ। उस समय पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक किया, हमको जीपें इंपोर्ट करनी थी, विलेज जीपें यहाँ कंपनी को असेंबल करनी थी, तो उन्होंने इनका यार्ड किराए ले लिया। इन्होंने कहा कि अच्छा आपकी जीप हम ही असेंबल करवा लेंगे मैकेनिक लगा के, वो असेंबल करवानी शुरू की। फिर उन्होंने कमांडर जीप ये वो धीरे धीरे करते हुए आज वो मतलब जो है ट्रक से लेके और कारों से लेके और सभी के फील्ड में, और अब वो एविएशन इंडस्ट्री में भी आ गए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी उन्होंने अपना एक कारखाना लगाया। तो कहीं ना कहीं देखिए हमको शुरुआत तो छोटे स्तर से भी करनी होगी, लेकिन उसके बिना मतलब दोनों ही विकल्प है, या तो हम पूरी तरह से पराश्रित रहें, मतलब दूसरों के लिए काम करें, और हमें अगर अपने लिए खुद के लिए काम करना होगा तो कहीं ना कहीं हमको अपने ब्रांड डेवलप करने होंगे, अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करने होंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अगला राकेश सिंह जी को आमंत्रित करूंगा, अंतिम प्रश्न होगा समय को देखते हुए। राकेश भी काफी हो गया है और इसके तहत मेरा एक तो आग्रह है कि प्रोफेसर सुधीर प्रताप सर जो कि जेएनयू से जुड़े हुए हैं, आप अपनी अगर टिप्पणी, और आदरणीय डॉक्टर उमेश सर, आप भी इकोनॉमिक्स में हैं और मेरे शिक्षक रहे हैं एवं क्रिश्चियन कॉलेज में, आपसे आग्रह अपनी टिप्पणी अवश्य 2 मिनट की ही करें। प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सर जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमारे बीच इस वेबिनार में आप जुड़े हुए हैं, आपसे भी आग्रह है कि अपने 2 मिनट, क्योंकि हम 10 मिनट में कम से कम इस प्रोग्राम को अब समाप्ति की तरफ हम लोग लेके जाएं। इससे पहले सिर्फ 2 बातों की तरफ मैं ध्यान, एक तो मेरा प्रश्न आदरणीय प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि सर से है। आपका काम जो रहा है वो जनजातियों को लेकर के रहा है, और आदरणीय कट्टीमणि सर को मेरी आवाज पहुंच रही है? आदरणीय टीवी कट्टीमणि सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूं सर कि जब हम पूरी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो जनजातीय समाज का कंट्रीब्यूशन हमारी संस्कृति में बहुत रहा है, और यहाँ लॉकडाउन में जब हम रामायण देखते हैं तो हमें उस संस्कृति की और एक दूसरा पक्ष दिखाई पड़ता है।
बावजूद इसके कहीं न कहीं हमारी सरकारों का ने उधर ध्यान नहीं दिया उनके एक बहुमुखी उस विकास पर। उसका फायदा उठा करके कुछ राष्ट्रीय स्तर से आगे बढ़कर के मैं कहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की कुछ संस्थाएं या कहूँ कि कुछ धर्म विशेष के लोग एक धार्मिक परिवर्तन की जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उससे कहीं न कहीं यह देश के लिए भी एक राष्ट्रीय संकट के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं आपका अध्ययन बहुत रहा है सर जनजातियों को लेकर के, तो मैं बहुत संक्षिप्त में सर जानना चाहता हूं कि आखिर समाज और सरकार, क्योंकि ये एक ऐसा संकट है कि जहां अगर समाज हस्तक्षेप करता है तो कुछ अराजक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर भारत की धुमिल एक दूसरे रूप में जाएगी। ऐसे में सरकार का ध्यान किस रूप में जा रहा है या अब तक जो स्थितियां रही क्यों नहीं रुक रहा है? चीजें जो परसेंटेज आ रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सर आप अपने अनुभव और अपने अध्ययन से संक्षिप्त में कुछ संकेत कर पाए ताकि हम शोधार्थियों को दिशा में कुछ सोचने का अवसर मिले। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक है कि जनजातीय लोग, सुनाई पड़ती है मेरी आवाज? आवाज बहुत स्पष्ट आ रही है। हाँ, जनजातीय लोग बहुत भोले होते हैं, बहुत भोले हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत गरीब हैं। पैसे वाले होने के बाद भी उनका भोलापन बरकरार रहता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सरकार ने, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, 5th शेड्यूल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है जहां मैं 6 बरस अपना जीवन बिताया, लगातार प्रोजेक्ट्स आदिवासियों को लेकर, जनजातीय लोगों को लेकर सरकार बहता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट के पैसे जनजातीय लोगों तक पहुंच नहीं पाते। इसमें केंद्र सरकार की गलती नहीं है, राज्य सरकार की गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है और बीच में जो अन्य भी चाहिए वो हम पहुंचाने में असमर्थ है। और आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया, धार्मिक परिवर्तन, इंटरनेशनल सहायता, ये सब लेकर करते हैं। हाँ, ये किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए एक ही उपाय है, जनजातीय लोगों को सही शिक्षा दे दो, उनको रोजगार से जोड़ो, उनको रोजगार से जोड़ो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, बैगा जनजाति बहुत ही भोला समाज है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, सेंट्रल इंडिया। वो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को वो इकट्ठा करके बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। वो बेचने जाते हैं, महुआ फॉर एग्जाम्पल, वो व्यापारी लोग, व्यापारी मतलब किसी खास धर्म के लोगों की बात नहीं करते, जो व्यापार करने वाले जो लोग हैं वहां आसपास के, वो मिट्टी के दाम पर उसको खरीद लेते हैं। एक मैंने उदाहरण देखा, 1 किलो महुआ 1 किलो नमक के लिए वो बेच देते। ये इन लोगों को ऐसे परिस्थिति से कैसे बचाना है, बचाने का मुझे जो नजरिया मैंने जो देखा, मैं उस पर अभी लिख भी रहा हूं। इन लोगों को एजुकेट करो, जनजातीय लोगों को एजुकेट करो, और धार्मिक परिवर्तन को रोकने के लिए एजुकेशन के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये जो 2 हमारे बड़े बहुत अच्छे इकोनॉमिक प्रोफेसर लोगों ने, जो एक्सपर्ट्स ने जो बात की, उससे मुझे ये लगता है जनजातीय लोगों को अपने उद्यम करने के लिए, अपने इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज करने के लिए हमको प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहित करने के लिए उनको एजुकेशन हो या ना हो वो जरूरत नहीं है। मैंने एक कुलपति होने के नाते मैंने वहां अमरकंटक में एक प्रयोग किया। कोदो कुटकी का उत्पाद वहां जहां ज्यादा होता है, वो हमारे विश्वविद्यालय के आसपास 20 रुपए किलो हम उसको खरीद सकते हैं। बिलासपुर 120 किलोमीटर दूरी पर जाकर हम दुकानों में खरीदेंगे, वो 180 रुपए किलो, 120 रुपए किलो वो बेचा जाता है। मतलब
100 किलोमीटर दूरी जाने के लिए ये कोदो को 100 रुपए लाभ मिलता है। हमने वो प्रोसेसिंग यूनिट सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों में डाला और उसको अमरकंटक कोदो के रूप में उसका मार्केटिंग शुरू किया, जिससे जो प्रोड्यूसर्स हैं या उसको प्रोसेस करने वाले हैं ट्राइबल लोग, उनको फायदा मिलने लगा। ये प्रयोग देश भर में हमको करना होगा। आर्थिक रूप से जो जनजाति सबल होते हैं वो धार्मिक परिवर्तन के चपेट में नहीं आते। थैंक यू। सर एक बस छोटी सी बात, मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ आपके संज्ञान के लिए। हो जी, सकता है आपके संज्ञान में सर ये आई हो घटना। आप अमरकंटक विश्वविद्यालय के आप वहाँ पे कुलपति पद को भी आपने सुशोभित किया है। पिछले दिनों पिछले 10 दिन के अंदर ही मैंने एक न्यूज पढ़ी है कि वहां पर जो जनजातीय समुदाय है उन्होंने एक आंदोलन किया और उन्होंने कहा कि ये जो विश्वविद्यालय है हमको ध्यान में रख करके बनाया गया, इसके नाम में भी वो चीज है, लेकिन हमारी इसमें हम इसके अंदर प्रवेश नहीं पा रहे हैं। भारत से दूसरे जगह से लोग आ रहे हैं, तो एक अलग तरह की संघर्ष की स्थिति वहां उत्पन्न हो रही है। तो इस पर सर थोड़ा सा कमेंट, और मुझे लगता है कि सर इस समस्याओं पे अगर आप लिखें भी, ताकि जिससे उन चीजों को आप बेहतर ढंग से वहां रहे हैं तो बेहतर ढंग से समझ रहे हैं कि ये वास्तविक स्थिति क्या है, ताकि उनको कुछ इसका उनके कंसर्न को समझा जा सके और सरकार तक इसको पहुंचाया जा सके। नहीं, वो आंदोलन तो पहले भी किया, अभी भी करते होंगे। दरअसल यहाँ कानून की बहुत बड़ी अड़चन है। वहाँ स्पेशल रिजर्वेशन ट्राइब्स को लेकर कुछ नहीं। जो केंद्र सरकार की जो 7.5 रिजर्वेशन है, उतना ही रिजर्वेशन वहाँ के लोगों को मिलेगा, या देश में कहीं भी वो ट्राइब्स को मिलेगा। और वहाँ सेंट्रल इंडिया में 32% ट्राइब्स की आबादी वहाँ है। उन लोगों को समझिए 10% भी लोग हमारे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहेंगे, उनको हम अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। वो लोग दूसरे जनरल कोटा में भी आना चाहिए। वैसे 31% इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं। मतलब नॉन रिजर्व कैटेगरी में भी वो आते हैं, ये है। और स्पेशल उनको रिजर्वेशन की जरूरत यदि हो तो केंद्र सरकार को वो बिल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है सर कि अगर हम सभी मतलब सरकार अगर इस तरह का भी प्रावधान करे या वहाँ के अकादमिक लोग इस तरह की पहल करें कि उनको कुछ विशेष तरह से एजुकेट किया जाए कि यूआर की उसमें सीटों पर वो उनकी एंट्री हो सके, तो शायद मुझे लगता है उनकी कुछ समस्या का एक समाधान हो सकता है। विश्वविद्यालय ये कोशिश कर रही है। कुछ टीचर्स अब बियॉन्ड देयर कैपेसिटी, बियॉन्ड देयर टाइम, बियॉन्ड देयर वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, गाँव में ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस बार हमने वो 2 बरस पहले वो ट्रेनिंग शुरू की थी। ये 12 बरस पुराना विश्वविद्यालय है, लेकिन जो अवेयरनेस वहाँ विश्वविद्यालय के कारण जनजातियों में जो हुआ है वो वाकई लाजवाब। थैंक यू। थैंक यू सर। जी राकेश कुमार। धन्यवाद। दिलीप जी कोई पूछना चाहता है तो देखिए आप। एक और है प्रोफेसर वाईपी सिंह सर जुड़े हुए हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। जी जी हाँ नमस्कार। मैं तो अर्थशास्त्र से बहुत सामान्य रूप से जुड़ा हूँ, उसका ना विद्यार्थी रहा ना देता रहा। एक हमारी जिज्ञासा है कि वर्तमान में अभी जो भी अर्थव्यवस्था की बात हुई और अर्थव्यवस्था के पैरामीटर्स की बात हुई, वो यह मान करके हम चल रहे हैं कि मनुष्य एक आर्थिक क्रियाएं करता है और आर्थिक क्रियाएं ही केंद्र में है उसके, जबकि अभी भारत के संदर्भ में बहुत सारी ऐसी बातें हुई कि मनुष्य सामाजिक प्राणी भी है और वो बहुत कुछ संतोष भी कर लेता है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं वो कहीं न कहीं मांग और पूर्ति वही उसकी आधारभूत संकल्पना है। और इस आधारभूत संकल्पना की वजह से कई बार सोशल सेक्स में समाज के विभिन्न वर्गों में एक बड़ा असंतोष भी पलता है, जबकि उनके वहाँ जो उनके प्रसन्नता का स्तर है, उनका जो जीवन स्तर में जो कह सकते हैं वो बहुत बढ़िया है, उसके बावजूद मांग और पूर्ति पर केंद्रित होने की वजह से
एक असंतोष दिखाई देता है। तो मैं अपने देश के अर्थशास्त्री लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़े इस दिशा में मेरा ज्ञान नहीं है, कि क्या भारतीय संदर्भ में जब हम देखते हैं कि मनुष्य केवल आर्थिक संक्रियाएं ही नहीं करता है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो एक बड़ी दौड़ मची हुई है, जिसकी वजह से पर्यावरण से विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और भी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो उसकी वजह से इन समस्याओं को कम करने के लिए क्या भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े लोग कुछ इन संदर्भों की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, या कुछ दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है इस पर भी विचार कर सकते हैं? आपका प्रश्न किससे है ये आपने इंगित नहीं किया। आपने हम तीनों में से यह प्रश्न किससे किया यह स्पष्ट नहीं किया है। जी बताएं, क्योंकि मैं एक चीज देखता हूँ कि हमारे गांव में हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जब मैं छोटा था गांव में जाता था तो हमारे खेत में जब अनाज कटता था तो दूसरे लोग नाई और दूसरे अन्य लोग आते थे, तो सबका बोझ अलग हो जाता था। पिताजी से मैंने पूछा इनका क्यों, तो ये हुआ कि इनका भी हक है। तो उत्पादन में सबका हक होता था, और हमारे गांव का जो नाई था वो निश्चित था, हमारे गांव का लुहार वो निश्चित था, दूसरे के गांव के लोगों का काम नहीं करता था। यानी कि वो सबकी में सहभागिता में भी वो एक निश्चित दायरा था, इसलिए जो भी कम से कम काम था उसमें सबको काम था। और उससे अलग आज हम बाजार की संस्कृति में हैं और एक ऐसी दौड़ में लगे हुए हैं, और वही बात अभी बाजार में अभी जैसे कोरोना का संकट आया, मैं देख रहा हूँ कि दुनिया में बड़े बड़े जो देश बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं वो भी ध्वस्त हो रहे हैं, और हम बड़े संतुष्ट हैं। बस केवल हम रोक लें तो हम अपने को ठीक रख सकते हैं, और अभी अपने वहाँ उतना दुष्प्रभाव नहीं है। तो हम बहुत कुछ पारंपरिक हैं इसलिए। तो मेरा कहना ये है कि उन पारंपरिक मानदंडों को भारतीय अर्थव्यवस्था के जो पैरामीटर हैं, क्या उसकी चर्चा हम लोग विश्व स्थिति पर नहीं कर सकते, कि कम से कम केवल मांग और पूर्ति पर आधारित अर्थव्यवस्था ना हो, वह लोगों को संतुष्टि भी प्रदान करे और अभावों को भावों से भरने की एक शिक्षा भी दे। मैं एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते, अध्येता होने के नाते हमारी एक स्वाभाविक जिज्ञासा है इस दिशा में भारत के लोग क्या करेंगे। धन्यवाद। आपने ये इंगित नहीं किया कि आपका प्रश्न किससे है, फिर भी मैं, चूंकि आपने आर्थिक संदर्भ दिया इसलिए मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। यह बात सत्य है कि व्यक्ति केवल अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए कार्य नहीं करता है। व्यक्ति को हमने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों का समुच्चय माना है। और दीनदयाल जी ने तो एक प्रकार से जो विश्व के सारे वलय हैं, चाहे व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, इन सबके ही यह एक प्रकार से शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा ये सभी रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं अर्थ उसके पीछे रहता है। चाणक्य ने भी चाणक्य सूत्रों में जब कहा कि सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है, और उन्होंने कहा धर्म से मूलम अर्थ, तो कहीं न कहीं अर्थ भी उसमें एक आधार होता है। और आज के समय में व्यक्ति की अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति क्रमांक 1 पर कहीं न कहीं बड़ी संख्या में लोगों की रहती है। और आज वैश्विक स्पर्धा में भी हम यदि अपने लोगों के योगक्षेम के लिए अगर जो है प्रयत्नशील रहेंगे, तो कहीं न कहीं वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में, वर्ल्ड के इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड में भी हमारा अपना सम्मानजनक स्थान होना चाहिए। भारत की आज चिंतन के आधार पर ही विश्व में अपनी एक प्रतिष्ठा है। और जब योग पर प्रस्ताव आया संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो एक प्रकार से 177 कंट्रीज उसके सह प्रायोजक बन गए। वो संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में पहली घटना थी। तो यह बात सत्य है कि व्यक्ति
एक सर्वांग मतलब जो है चिंतन पर अवलंबित होता है और उसे दृष्टिगत रखना होता है। तथापि कहीं न कहीं अर्थ इसके बीच में रहता है। आज उदाहरण के लिए हम लें, चीन के साथ 1962 में हमारा वार हुआ और हमारी वार प्रिपेयर्डनेस में कहीं न कहीं कमी रही और इसलिए हमारी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का अक्षय चिन्ह उसके नियंत्रण में गया। इसलिए आज के समय में हमको अपने सामरिक क्षमता बढ़ाने के लिए राजस्व का एक बड़ा भाग हमको देश की रक्षा व्यवस्था पर भी खर्च करना होगा। राजस्व तभी बढ़ेगा जब देश में उद्योग, व्यापार, वाणिज्य की प्रगति होगी। आज अपने देश में हम देखें तो टैक्स जीडीपी रेशो लगभग जो केंद्र का 9.5-10% है, राज्यों का मिलाकर 16-17% होता है। दुनिया के विभिन्न देशों में यह 35-28-30% तक रहा है। हमारा टैक्स जीडीपी रेशो कम होने के कारण ही आज हम डिफेंस पर अपना जीडीपी का 1963 से भी पहले के स्तर पर चले गए। हम 2% के करीब ही खर्च कर पाते हैं, जबकि 1987-88 में हम अपने डिफेंस पे अपने जीडीपी का लगभग 3.8 खर्च करते थे। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, कहीं न कहीं हमको आर्थिक उत्कर्ष के लिए एक राष्ट्र के रूप में बहुत सारा करना होगा और देश की विभिन्न उत्पादन पद्धतियों में भी सुधार लाने के लिए, उदाहरण के लिए सिंगापुर 625 स्क्वायर किलोमीटर का देश है। 5,200 सिंगापुर हिंदुस्तान में समा सकते हैं, लेकिन हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स में सिंगापुर का स्थान दुनिया में चौथा है, हमारा 22वां है। वो हमारे 7.5 गुना हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो कहीं न कहीं हमको प्रौद्योगिकी, कहीं न कहीं अर्थतंत्र, इन सभी के ऊपर भी चिंता करनी होगी। लेकिन अपना जो दुर्लक्ष्य दूसरा व्यक्ति के सर्वांग विकास की, उससे भी नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ स्वामी चिन्मयानंद जी अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहा था गरीब वह व्यक्ति नहीं है जिसके पास धन कम है, गरीब वह व्यक्ति है जो अधिक धन के लिए उद्विग्न है। तो यह बात तो अवश्य है कि हमें अपना एक परिमित उपभोग रखते हुए, और इसीलिए हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल कंजम्पशन होना चाहिए। हम अपने उपभोग को परिमित रखते हुए जो आज की वैश्विक स्पर्धा का दौर है, उसमें कहीं न कहीं अपने लोगों, अपने समाज के योगक्षेम, हमारी रक्षा व्यवस्था, हमारी सामाजिक सुरक्षा, इन सब के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है और इसलिए हमें निश्चित रूप से अपना एक सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रयत्न करना होगा। एक 62-63 में हमारी स्थिति थी कि शिप टू माउथ, कि अनाज आयात होता था तो जाके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते थे। तो हमने अगर कृषि उत्पादकता बढ़ाई, आज हमारा 2 करोड़ टन अनाज सरप्लस पैदा होता है, तो कहीं न कहीं उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि व्यक्ति के योगक्षेम को प्रभावित करती है। इसलिए हमें एक संतुलित दृष्टिकोण लेकर चलना होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसीलिए हमने धर्म को प्रथम स्थान दिया है, लेकिन अपनी कामनाओं, अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ति के लिए और इसलिए हमको अर्थ की आवश्यकता भी होती है। लेकिन हम धर्म का आचरण करते हुए अपनी इन काम और अर्थ संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, तभी हम मोक्ष रूपी अंतिम लक्ष्य या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। इसलिए हमें एक समय के दृष्टिकोण लेकर चलना होगा। जी जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए मैं मृणाल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे सभी हमारे मुख्य वक्ताओं, मुख्य अतिथि का और जो भी विद्वत जन संगोष्ठी में जुड़े हुए हैं उन सब का धन्यवाद ज्ञापन करें। मृणाल सिंह जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हेलो, हाँ मैं डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह। राकेश जी ने चूंकि कहा कि मैं कुछ टिप्पणी करूं, समय बहुत हो गया है, लेकिन मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि बहुत ही अच्छा प्रयास रहा सभी आयोजकों का, और इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। डॉक्टर विवेक निगम सर चूंकि मेरे साथ हैं, मैं आपको सुनता रहता हूं, लेकिन कुट्टीमणि सर ने जो उपभोग को सीमित करने की बात की, और मैं समझता हूं कि शर्मा जी का भी अंत में वही उसी तरफ इशारा था कि कहीं न कहीं हमें अपने उपभोग को सीमित करना होगा और एक ऐसी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सोचना होगा जो कि प्रकृति से सामंजस्य बिठा करके चल पड़े।
बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे इससे जुड़े हुए विषय हैं जिन पर अभी और चर्चा होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आयोजक अन्य जुड़े विषयों पर भी इसी तरह से आगे भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे और बहुत अच्छी सहभागिता रही, बहुत अच्छा प्रश्न रहा। विशेष रूप से शर्मा जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कुछ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से जुड़े विषयों पर और भारत में जिस तरह से उद्योगों के विकास पर आपने उदाहरण दे करके और तमाम आंकड़ों के माध्यम से इतनी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आपने दी कि मैं तो आपको सुनकर के दंग था कि आपको इतनी सारी चीजें याद कैसे। तो सर मैं एक बल्कि अपने छात्रों के लिए इलाहाबाद में आपका एक व्याख्यान कराना चाहूंगा। एक बार पुनः आपका बहुत आभार और राकेश सहित सभी आयोजकों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सर। निगम सर कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं, तो निगम सर से अनुरोध है कि सर कुछ योगेंद्र प्रताप जी का जो प्रश्न था उस पर माननीय भगवती प्रसाद शर्मा जी ने विस्तार से बताया। उसमें ही कुछ एक बात मेरे मन में थी और मुझे लगता है वो भगवती प्रसाद जी ने कही है, लेकिन उसको प्रकारांतर से मैं कह दूं। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में दो पक्ष हैं, समष्टि और व्यष्टि। तो एक राष्ट्र के रूप में एक आर्थिक दृष्टि से सशक्त और एक प्रभावी यह होना हमेशा से भारत की कामना रही है, लेकिन अपने प्रभाव का कहीं भी दुरुपयोग न करना। भगवती प्रसाद जी ने उदाहरण के साथ इसको बहुत स्पष्ट किया। किंतु जो व्यष्टिक का अर्थशास्त्र है वह यह कहता है कि अपरिग्रह और संयम यह उपभोग के लक्षण होने चाहिए। कटिबनी जी ने जिसका पूरा अपने जनजातीय जीवन में, वनवासियों के जीवन में जिसका विवरण दिया कि वे संग्रह नहीं करते। समस्या आज के समय में जो दिख रही है उसका बड़ा कारण ये है कि हमारी शिक्षा पद्धति ने बार बार यह बताया कि व्यक्ति मूलतः स्वार्थी है। भारत में यह माना गया था कि व्यक्ति में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, दैवी और आसुरी, पर मूलतः व्यक्ति परमार्थी होता है और उसकी दैवी शक्ति का विकास करना चाहिए। परंतु शिक्षा पद्धति में फ्राइडियन कॉन्सेप्ट को लेकर सभी विषयों में यह कहा गया कि व्यक्ति मूलतः स्वार्थी है और वह अपनी रैशनैलिटी, अपनी विवेकशीलता का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है। ऐसी शिक्षा पद्धति में पढ़कर, बड़े होकर, रच बसकर और जब राजनीतिक क्षेत्र से भी यह कहा जाता हो कि विद्यार्थी का काम देश दुनिया की समस्या को ध्यान नहीं देना है, वह सिर्फ अपनी पढ़ाई करे। और इस बात की शुरुआत स्वतंत्रता मिलते ही पंडित नेहरू ने अपने भाषण से की कि जैसे युद्ध के बाद सेनाएं अपने बैरक में जाती हैं, विद्यार्थियों को वापस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। तो जहां की तरुणाई को राष्ट्र से, समाज से काटकर अलग रहने की बात कही जाए, जबकि हमारे गुरुकुलों में, जंगलों में रहने वाला ब्रह्मचारी भी समाज से कटा नहीं होता था, और उसे यह बताया जाए कि वह स्वार्थी है, तो उसकी आसुरी प्रवृत्तियों का विकास होना, और आसुरी प्रवृत्ति यानी संग्रह करना, संपत्ति को इकट्ठा करते जाना और उसकी रक्षा करना। तो यह जो असंतोष आप बता रहे हैं ये उन्हीं लोगों में दिखाई देता, और ये बहुतायत तो नहीं है, ये सामान्य ग्रामीण जन में नहीं है। हाँ, हम अपनी परंपरा और संस्कृति के नाम पर पुरानी ग्रामीण व्यवस्था को स्थूल रूप में वापस वैसा ही देखना चाहते हैं, यह सबसे बड़ी भूल है। समय के साथ संरचना का, प्रकृति का, संरचना का, व्यवस्था में परिवर्तन होगा, परंतु उसकी मूल भावना ये होनी चाहिए कि सभी एक दूसरे के हितों की रक्षा करते हुए अपने हितों का संवर्धन करें। और इसलिए शिक्षा पद्धति में सुधार बहुत आवश्यक है, जिसको कि हम लोग हमेशा से कहते आए। योगेंद्र जी, आप भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे और हम भी रहे, तो हम हमेशा से इस बात को कहते आ रहे हैं कि शिक्षा का परिवर्तन बहुत जरूरी है, क्योंकि जनमानस का निर्माण शिक्षा पद्धति करती है। यहाँ भारत में जैसा मैंने चर्चा किया कि कोरोना में लोग स्वाभाविक रूप से निकल पड़े, और कोई पंजाब का रहने वाला उत्तर प्रदेश के गरीबों को बंबई में खिला रहा है, कोई
बिहार का रहने वाला कर्नाटक को खिला रहा है, कन्नड़ बंगलोर के लोग उत्तर भारत के लोगों को भोजन करा रहे हैं, वह इस कारण से है कि हमारे परिवारों से हमारी पारंपरिक जो जीवन मूल्य हैं वह अभी भी हमको मिलते आ रहे हैं। तो आपने जिस समस्या की बात की कि बहुत संपत्ति के बावजूद लोगों में संतोष नहीं है, उसका समाधान बाहर से नहीं हो सकता, उसका समाधान उन्हीं लोगों के अंतर्मन के विकास में संभव है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर राकेश जी से निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम को समाप्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर राकेश जी। आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है जी। सर्वप्रथम मैं अपने आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारे आग्रह को आपने स्वीकार किया। आदरणीय डॉक्टर विवेक कुमार निगम सर, आदरणीय प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा सर, आदरणीय प्रोफेसर टीवी कट्टी सर, बहुत ही सारगर्भित और ज्ञानवर्धक आपके वक्तव्य ने हम शिक्षकों और न्याय क्षेत्र से राष्ट्रवाद की जो समसामयिक स्थितियों में जो चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, निसंदेह हम कुछ समाधान कर पाए, तो हम निसंदेह कुछ समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, ऐसी मैं इस वक्तव्य के बाद उम्मीद करता हूं। इसी के साथ यह वक्तव्य संज्ञार्थम रिसर्च फाउंडेशन की जो वेबसाइट srfindia.org पर यह वहां पर कभी भी इसको सुना जा सकता है, जैसा कि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों का अनुरोध आया है। और इसी के साथ यह जो योजना बहुत कम समय में जो तैयार की गई, इसमें बिहार के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से मन्नू कुमार जी, रविशेखर जी ने अपना परिचय दिया, आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से, गाजीपुर पीजी कॉलेज से, राजीव प्रताप जो कि अमेठी यूनिवर्सिटी से, आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट से, इसी तरीके से मृणाल जी जो कि सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका जो सहयोग, और दिलीप और अनुराग, आप सभी हम एक टीम रूप में काम करके इस कार्य योजना को इस मंच तक उसके रूप को साकार कर पाए। निसंदेह हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम इसी प्रतिबद्धता के साथ अपने शिक्षक और विद्वज्जन से समय समय पर हम इस तरह की एक कोशिश करते रहेंगे। इसी के साथ हम अपने शिक्षक साथियों से भी अनुरोध करते हैं कि उनके पास अगर कोई इस तरह की जो स्थिति अपने देश की समस्या को लेकर के, समाधान को लेकर के अगर कोई कॉन्सेप्ट है, तो वो जरूर हमसे अवगत कराएं। निसंदेह हम उसमें कुछ कर पाएंगे तो हम उसका अपने यथार्थ स्वरूप प्रयास जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक चीज और अपने इस अतिथिगण से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि समय की कहीं न कहीं इस तकनीकी व्यवधान और इसकी बहुत प्रैक्टिस न होने के कारण हम उस समय सीमा को शायद उसका पालन नहीं कर पाए। एक बार पुनः हम क्षमा प्रार्थी हैं और हम आपके आभारी हैं। आदरणीय शिक्षक साथी और वक्तागण, आप सबको एक बार सादर प्रणाम। धन्यवाद सर। जी, आप सभी का धन्यवाद, आभार। फिर मिलेंगे।